answers or papers. You are asked if salt weathering belongs to the chemical weathering section, but no, it does not. It belongs to the physical Hello, weathering. ma'am. Yeah, sorry. Ma'am, can you revise what you did in Zenith ma'am's lecture, because my network, I was facing a network issue. Oh, you want me to give you a quick revision of what we did yesterday? Ma'am, Sure. just in short, Yeah, very, in very the short, second very lecture. short. Yeah, no problem. We went through different factors which were responsible for weathering, and in that we encountered first of water, where we decided where we thought water is responsible both for physical as well as chemical weathering, and that because physical weathering में वो freeze and thaw weathering होता है water का, and chemical weathering में water के अंदर अगर oxygen वगैरह ऐसी सारी चीजें आ गई तो फिर वो एक that also adds the components inside the water, they also add to the chemical weathering part of it. So oxygen अगर ऐड किया तो फिर oxidation reduction वो reactions हो जाते हैं जिसकी वजह से rust वगैरह develop हो जाता है इस तरह से जैसे rock के ऊपर हो गया. And then lastly we discussed carbon dioxide, जिसमें हमने carbonation का process देखा था जिसमें वो limestone caves वगैरह बनते हैं weathering की वजह से. Okay, so we had looked into these processes. Okay, ma'am. Thank you. I am also, no worries, I'm also going to try to give you guys how do you say, this is your textbook way of teaching, right? I am going to go to my way of teaching and give you, once you're done with the textbook, I'm going to give you a very quick walkthrough through how about how you can do weathering in the physical, chemical, biological, anthropological, that sort of manner. Okay, वो वाला classification कराएंगे. ठीक है. Salt जो होता है it's a chemical compound and it can also carry out physical weathering. And ये जो salts होते हैं ना, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम के, ये रॉक्स में प्रेजेंट होते हैं. ओके, अभी salts का टेंडेंसी क्या होता है, they have a tendency to expand. कहाँ गया, यहाँ पे, अच्छा, they have tendencies to expand. okay, उनका salt का tendency होता है कि जैसे water का freeze करने पे tendency होता है ना कि उसका volume बढ़ता है, salt का भी tendency होता है कि वो water absorb कर लेता है and then उसके बाद it just expands. okay, वो expand करता है तो उसकी वजह से फिर उसका crystallization होता है of the salts and उसके जो individual grains होते हैं they split from the main rocks and fall off at the end. okay, मतलब क्या करता है ना ये salt जो है, a better way of explaining would be this. सी, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ये दो डिफरेंट टाइप्स के रॉक्स है. यहाँ पर लेफ्ट में कॉर्नर लेफ्ट, बॉटम कॉर्नर लेफ्ट में आपको ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट का एग्जांपल है, और ये जो है ये सैंडस्टोन है. ओके, ये वाला जो राइट हैंड कॉर्नर में है वो सैंडस्टोन है. तो ये दो डिफरेंट रॉक्स. हेलो, इज समबडी ट्राइंग टू स्पीक पीपल? नो, ओके, you guys are still recording your attendance. Attendance लगा के भाग मत जाना, मैं एक और attendance लेती हूँ. Anyways, तो क्या हो जाता है ना, different types के rocks जो होते हैं उसमें ना, अभी ये जो salt weathering होता है ना, please remember it's a physical sort of a weathering and वो dry and arid climates में होता है. okay, जहाँ पर basically अच्छा, okay. you guys have also started calling people ना, ऐसे आप ऐसे I have this tendency of calling, you guys don't like to be called kids ना, तो इसलिए I don't use the words kids often, but and children भी नहीं बुला सकते आपको, you take offense to that also. तो people is a good word, we all are human beings, so people is a good word. ठीक है, नहीं ना, you don't mind, क्या चलता है क्या आपको सब कुछ ठीक है? तो for me it is perfectly fine. I'd rather call you kids or children rather than people. But I call you, अरे यार, you are not the only gentleman, right? We have ladies also in the class. तो अब मैं क्या ladies and gentlemen बोलती फिर वो आप लोगों को, कैसे चलेगा ऐसे, है ना? Back to salt weathering, है ना? People is a good thing. चलो, अच्छी बात है. तो ये जो होता है ना, ये ड्राई एंड एरिड क्लाइमेट्स में होता है, जहाँ पर ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग होता है. ओके, तो आपके लिए ना इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि सॉल्ट वेदरिंग जहाँ पर होगा उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर सॉल्ट वेदरिंग इज कि आपका वो जो सॉल्ट है वो एक्यूमुलेट होना चाहिए एंड देन उसके बाद उसको सूखने का टाइम मिलना चाहिए. ओके, उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए कि वो सॉल्ट गीला हो जाए, इसी तरह से सॉल्ट गीला होके वो रॉक के अंदर बैठ जाए, पोर्स के अंदर या जॉइंट्स के अंदर, क्रैक्स के अंदर, एंड देन उसके बाद उस सॉल्ट को सूखने का भी मौका मिलना चाहिए. ओके, इसीलिए ऑल्टरनेट ड्राइंग एंड वेटिंग होना चाहिए कंडीशन
conditions in the seacoast. That has to मैम म्यूट happen. कर दो ना उसको मैम. हाँ मैं कर रही हूँ म्यूट कर रही हूँ मैंने सबको किया. Okay, so intense heating causes vaporization and salt formation. Why do you need it to be alternate drying and hotting? क्योंकि अगर वो ड्राई हो जाएगा ना तो उसकी वजह से वेपराइजेशन हो जाएगा, पानी वेपराइज हो जाएगा एंड एक्चुअल सॉल्ट पीछे रह जाएगा. एंड ये जो सॉल्ट के क्रिस्टल्स होते हैं ना वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं ऑन द नेबरिंग क्रिस्टल्स एंड उसकी वजह से सॉल्ट में ब्रेक डाउन होता है, आई मीन रॉक का ब्रेक डाउन होता है. ओके, अब ये देखिए ये जो राइट हैंड साइड पे रॉक दिखाई दे रहा है आपको, उसमें पहले ये जो छोटे छोटे आपको ये हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं ऐसे, यू नो ऐसे honeycomb प्रॉपर weathering. स्क्वेरिश, हाँ जी स्क्वेरिश स्ट्रक्चर्स है यहाँ पे, स्क्वेरिश पेंटागोनल हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स. तो ये जो होते हैं ना ओरिजिनली ये ऐसा प्लेन रॉक था. ओके, फिर उसमें वो सॉल्ट क्रिस्टल्स जाके बैठ जाते हैं एंड वो एक्सर्ट करते हैं प्रेशर एंड दिस इज हाउ यहाँ पर ये जो रॉक है ना इसके उस रॉक के जो इंडिविजुअल ग्रेन्स होते हैं वो गिर जाते हैं एंड ये रॉक में ऐसा वाला स्ट्रक्चर हो जाता है. ओके, so this is what happens to sandstone which considers itself pretty good, okay, when it comes to being in humid climates or something like that. Sandstone खुद को बहुत smart समझता है. And I'll tell you, sandstone has every reason to be consider itself pretty okay डॉन आदमी समझने की, बिकॉज क्या हो जाता है ना, आप जितने भी स्ट्रक्चर्स देखते हैं स्पेशली मुगल टाइम के, वो सारे ग्रे सैंडस्टोन रेड सैंडस्टोन में बने हैं. इमेजिन ऑल फेमस बिल्डिंग्स इन एंड अराउंड दिल्ली एंड आगरा आर ऑल मेड इन ग्रे और रेड सैंडस्टोन एंड आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि वो अभी भी है और अच्छे खासे खड़े हैं, है ना. यू इट इज अ गुड कंस्ट्रक्शन. सो सैंडस्टोन इज प्रिटी ड्यूरेबल. ओके, एंड ये उसकी हालत हो जाती है बाय सॉल्ट वेदरिंग. नाउ लुक एट ग्रेनाइट. ग्रेनाइट का तो उन्होंने यहाँ पर प्रॉपर ऐसे ग्रेनाइट जो होता है ना, ग्रेनाइट वो लेयर्स के फॉर्म में नहीं निकल आएगा. ओके, उसके टुकड़े बन जाएंगे एंड देन उसका इस तरह का ये जो उसका वेदरिंग होता है ना, इट विल लुक लाइक द सॉल्ट हैज एक्यूमुलेटेड ऑन इट. ओके, तो वो जो सॉल्ट वेदरिंग होता है विद ग्रेनाइट, इट इज उसके ना बहुत छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं. ओके, इट विल एक्चुअली वेदर बैडली. ग्रेनाइट जो होगा ना, बिकॉज ग्रेनाइट में ना आपको क्रैक्स मिल सकते हैं. एक सेकेंड ना, ग्रेनाइट्स में व्हाट यू गेट इज क्रैक्स. ओके, ये अगर रॉक होगा ना तो ग्रेनाइट में आपको प्रॉपर क्रैक मिलता है. थ्रू आउट द एंटायर रॉक आपको प्रॉपर क्रैक मिल जाता है. ओके, सैंडस्टोन में, सैंडस्टोन बीइंग अ सेडिमेंट्री रॉक, आपको लेयर्स मिलते हैं. प्लीज रिमेंबर, ग्रेनाइट जो होता है वो जॉइंटेड रॉक होता है. ओके, एक्चुअली जॉइंटेड से भी ज्यादा ना, इट इज अ व्हाट डू यू से, उसमें ग्रेन्स बनते हैं, बड़े बड़े ग्रेन्स बनते हैं ग्रेनाइट में. ओके, तो इसलिए उसके बीच में ये पोरस रॉक नहीं है, ये परवियस रॉक है, उसमें क्रैक डेवलप हो जाएगा एंड वो क्रैक ऊपर से लेके नीचे तक हो सकता है. बट when it comes to sandstone, this is sandstone, the one that I have tick marked. तो sandstone जो है उसमें आपको layers मिलेंगे. ओके, सो अभी रॉक के स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करेगा कि वो किस वेदरिंग को, फिजिकल वेदरिंग को, केमिकल वेदरिंग को किस तरह से रिएक्ट करता है. ओके, सो दैट इज वाई आपको ये दोनों रॉक्स के ये डिफरेंट दिखते हैं. पीपल ओके, ठीक है. अभी कौन से रॉक्स अफेक्ट होते हैं इससे? चॉक, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, शेल, ग्रेनाइट, नाइस, ऐसे ऐसे वाले होते हैं. पोरस वाला वो हल्का होता है ना. एक्चुअली पोरस वाला हल्का होता है क्या? यू मीन वेट में हल्का होता है क्या? पोरस वाला वेट में हल्का होता है क्या? लॉजिकली मेरा मन कर रहा है बोलने का हाँ पोरस वाला वेट में हल्का होता है, बिकॉज पोर्स में एयर कंटेंट होगा रादर देन दिस. तो यस लॉजिकली, बट आई पता नहीं क्यों एट द बैक ऑफ माई हेड ना समथिंग इज टेलिंग मी कि नहीं, सारे पोरस रॉक्स का वो किस्सा नहीं होता है. there also has to be a thing about what do you say, about the material contained in the rock. आपका जो रॉक होता है ना उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल्स होते हैं उस पर भी डिपेंड करता है कि रॉक का वेट कैसा होगा. बट यस, पोरस रॉक विल टेंड टू हैव लेसर वेट देन द वंस दोज आर परवियस. एक सैंडस्टोन होता है ना जो बहुत ही हल्का होता है, ग्रे कलर का सैंडस्टोन जो बहुत हल्का होता है, पता नहीं यार. आई नो, वो प्यूमिस जैसा, वो जिसमें बहुत सारे छेद होते हैं, प्रिटी पोरस दिखता है ऊपर से. प्यूमिस की बात कर रहे हैं क्या आप? हाँ मैम, वो फ्लोट भी करता है ना पानी पे.
हाँ क्या वो पानी में फ्लोट, वेट देन आई नीड टू चेक ये कौन सा पत्थर है जो पानी में फ्लोट कर रहा है. आई कैन नॉट से विद गारंटी वो क्या है. Then I need to check. I'll check कौन सा पत्थर पानी में फ्लोट कर रहा है and I'll let you know. It has to be really porous यार, अगर वो पानी में फ्लोट कर रहा है तो. करता है, पढ़ा था मैं. अच्छा, यू आर सेइंग वो बाहर से कड़क दिखता है लेकिन उठाते ही बहुत हल्का होता है. अच्छा, ठीक है ठीक है. I'll look into it what the rock is called because it currently I can't get anything. चलेगा. I told you right, with you guys even I am studying something. आप लोग मुझे अच्छा अटेंडेंस में दिख रहे हैं, मैं आपका अटेंडेंस ले लेती हूँ और फिर उसके बाद सोचते हैं. अरे नहीं यार, एक्चुअली ना यू पीपल प्लीज प्रिपेयर फॉर दैट टेस्ट ऑन वेंसडे. पता नहीं क्यों मुझे टेंशन हो रही है आप लोग की. मैम फर्स्ट चैप्टर राइट? हाँ जी, just the first chapter and nothing more. एंड सब्जेक्टिव भी नहीं है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव है. एंड ऐसा कुछ वियर्ड नहीं पूछ रही हूँ मैं, ऐसे मुझे लग रहा है. मे बी आई नीड somebody else to see the paper, not you. किसी और को दिखा देती हूँ मैं, पूछ लेती हूँ ठीक ठाक लग रहा है क्या. ओके ठीक है, डन. अरे यार, आपके वेंसडे को 3 टेस्ट है. प्यूमिस्टोन ही है वो प्यूमिस्टोन ही है. हाँ मैम. अच्छा, ये कोई प्यूनिक बुलर है वो. अच्छा, मुझे भी लग रहा है प्यूमिस्टोन होंगे लेकिन पता नहीं, मेरे घर में है प्यूमिस्टोन बट ओके ठीक है, चलेगा. थैंक यू. अरे वाह, यू पीपल हैव तो एक्सप्लोडेड ऑन द चैट. ठीक है. थैंक यू एवरीवन जिन्होंने हल्के फुल्के स्टोन के बारे में इतना अच्छा लिख के दिया है. ओके. अरे यू वांट मी टू शिफ्ट माय टेस्ट. आपको ज्योग्राफी का टेस्ट नहीं देना है वेंसडे को, हम थर्सडे को रख सकते हैं. मैम ठीक है ना मैम, अगले दिन रखिए. बीमार मत रहिए आप प्लीज. वेंसडे को हम किसी और दिन पे, थर्सडे को करा दूं मैं टेस्ट, थर्सडे को कराए. आप पहले इसका फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का टेस्ट दे दीजिए, फिर आराम से थर्सडे को ज्योग्राफी का कर लेते हैं. हाँ हाँ करेक्ट, जिससे हम टोज या एंकल्स घिसते हैं. प्यूमिस्टोन का वही एक इस्तेमाल है, मेरे घर में तो वही एक इस्तेमाल है. नहीं नहीं प्लीज बीमार मत रहिए, हम थर्सडे को करा लेते हैं टेस्ट. ठीक है, लेट्स हैव द टेस्ट ऑन थर्सडे. आई विल पुट इट अप ऑन द ग्रुप अगेन. मैंने बोला ना फर्स्ट चैप्टर पे फ्राइडे को कराना है टेस्ट. ठीक है, फ्राइडे को करा लेते हैं, नो प्रॉब्लम. टेक अनदर डे टू स्टडी. फ्राइडे को कर लीजिए, नो प्रॉब्लम. फ्राइडे पक्का लेकिन. अच्छा, अभी थर्सडे को. यार यू पीपल डिसाइड आपको कब करना है, मुझे बता दीजिए और हम उस हिसाब से करते हैं. टाइम डूइंग दिस ओवर हियर. ओके, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट. तो प्लीज रिमेंबर कि आपका जो सॉल्ट वेदरिंग होता है ना, वो दैट इज अ एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल वेदरिंग. एंड दैट इज जब आपको ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग होता है, तो ऑब्वियसली कोस्टल एरियाज, दैट इज द फर्स्ट प्लेस दैट विल कम टू योर माइंड राइट व्हेन इट कम्स टू ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग. तो आप कोस्टल एरियाज के बारे में ही सोचेंगे. एंड इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ हनीकोम स्ट्रक्चर्स. ये जैसे हनीकोम स्ट्रक्चर्स बने हैं ना, वैसे वाले स्ट्रक्चर्स बनते हैं. ये आपको व्हाट डू यू से, इसमें भी मिलता है, सोल्यूशन में भी मिलता है ऐसा वाला. लेकिन सोल्यूशन में मोस्टली ना आपको प्रॉपर वाले ये मिलते हैं, what do you say, holes मिल जाते हैं. ओके, बट this proper honeycomb structure is something जो आपको salt weathering में मिलता है. ओके, people pay attention. क्या कर रहे हैं? हीट. ओके, हीट जो होता है, हीट नाम का एक बहुत मस्त मूवी है, आपने देखा है क्या कभी? जाने दो. इन एरियाज में वाटर अवेलेबिलिटी इज रेयर, वेदरिंग मैम व्हाट? प्रोसेस जो होता है, हीट नाम का एक बहुत अच्छा मूवी है. अल पचिनो, रॉबर्ट डिनेरो, सुपर मूवी है. I just remembered because of that. हाँ क्राइम पे है ना कुछ तो. हाँ हाँ, one is a criminal, the other is a police officer. So कैपुचिनो, कैपुचिनो नहीं, अल पचिनो. यार
कैसे लोग हैं आप? मैं अल पचिनो का नाम नहीं लिख रही हूँ यहाँ पे। लिसन, ये देखिए हीट में ना, सी नाउ वंस अगेन दिस इज गोइंग टू बी अ फिजिकल वे, ओके, फिजिकल वेदरिंग का एक अच्छा खासा तरीका होने वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल, एंड हीट सबसे ज्यादा कहाँ पर ये करेगा, अफेक्ट करेगा आपको? हॉट डेजर्ट्स में, है ना, बिकॉज दैट इज एन एरिया ऑफ हाई डायर्नल रेंज। यू अंडरस्टैंड व्हाट अ डायर्नल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज? डायर्नल रेंज ऑफ टेम्परेचर मतलब 24 घंटे में दिन का हॉटेस्ट, एक 24 घंटे के पीरियड में दिन का हॉटेस्ट टेम्परेचर क्या है और रात का कोल्डेस्ट टेम्परेचर क्या है, ओके, और उन दोनों में जितना फर्क होता है दैट इज कॉल्ड एज द डायर्नल रेंज, ओके। अब मेरा ऐप जो है, फिलहाल जो मेरा फोन का ऐप है, वो मुझको बता रहा है कि आज मेरा जो टेम्परेचर है, दैट माई मिनिमम टेम्परेचर इज गोइंग टू बी 22 and the maximum temperature is going to be 30, okay. So what is the difference between the maximum and the minimum temperature? 30 minus 22, so 8 degrees Celsius का डायनल रेंज है, ओके। बट ये रहा, ये तो अभी नॉर्मल पुणे में है इसलिए ऐसा सब कुछ हो रहा है। नाउ लेट्स लुक एट अ प्लेस, से फॉर एग्जांपल अ डेजर्ट, ओके। अब डेजर्ट में दिन के जो टेम्परेचर्स होते हैं वो दे आर सोरिंग, ओके, बहुत बहुत ऊपर चले जाते हैं वो दिन के टेम्परेचर्स। एंड रात के जो टेम्परेचर्स होते हैं वो बहुत ठंडे ठंडे हो जाते हैं ना। सो दैट इज वाई आपका जो डायनल रेंज होता है इन अ डेजर्ट वो बहुत ज्यादा होता है, ओके। अरे यार, मैं आप लोगों को क्या बता रही हूँ? आई एम ट्राइंग टू टेल यू गाइस अबाउट ही ऐसे द इफेक्ट ऑफ हीट इन डेजर्ट्स। व्हाट आर यू गाइस डिस्कसिंग ऑन चैट? हाँ, ओके। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, अभी टेस्ट कभी फिक्स किया हमने? टेस्ट हमने थर्सडे को फिक्स किया, है ना? हमने थर्सडे को टेस्ट फिक्स किया। ठीक है, चलेगा, थर्सडे को फाइनल कर लेते हैं टेस्ट आपका। नहीं नहीं, 30 सेकेंड को वगैरह नहीं कराएंगे, इसको करा देते हैं यार। सी, मैंने बोला था मैं अटेंडेंस ले लूंगी ना तो बच्चे भाग जाएंगे। एनीवेज, तो क्या हो जाता है ना कि यू नीड अ गुड डायनल टेम्परेचर का रेंज चाहिए आपको, ओके। दिस इज व्हाट हैपेंस। तो एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस विद द राइजिंग सन, अरे यार, अपने आप को म्यूट रखिए पीपल, ओके। जैसे ही सन राइज करने लगता है, वैसे ही आपका वो जो रॉक होता है दैट स्टार्ट्स गेटिंग हीटेड, ओके। एंड देन द मिनरल्स इन द रॉक्स आल्सो दे रिएक्ट डिफरेंटली टू द टेम्परेचर इंक्रीज। कौन है ये जिनका माइक ऑन है? मैं आपको निकाल दूंगी मीटिंग में से। मैम समीर शेख है। यार समीर, आप अपना प्लीज माइक ऑफ रखिए एंड ध्यान दीजिए अगर आपका माइक ये होता है तो। यस मैम, ओके। मेरी क्लास की आवाज। ओ हाँ, तो फिर ट्राई नॉट टू पुट इट, स्विच इट ऑन द माइक, ओके। तो अभी ना बैक टू बिजनेस। आपका जो अभी ना जैसे जैसे टेम्परेचर राइज करने लगेगा, एज एंड हाउ द टेम्परेचर स्टार्ट्स टू राइज, टेम्परेचर इंक्रीजेस तो रॉक भी इंक्रीज, रॉक ऑल्सो स्टार्ट्स गेटिंग हीटेड, ओके। रॉक के अंदर क्या है? मिनरल्स है। अब ये जो मिनरल्स होते हैं वो हर मिनरल डिफरेंटली रिएक्ट करता है। कुछ मिनरल्स एक्सपांड कर जाते हैं थोड़ा सा ज़्यादा, कुछ मिनरल्स थोड़ा कम एक्सपांड करेंगे, क्योंकि मेटल्स वगैरह अगर होंगे ना तो वो ज़्यादा एक्सपांड करते हैं, राइट? उनका टेंडेंसी होता है एक्सपांड करने का। सो डिफरेंट मिनरल्स विल एक्सपांड सेपरेटली, ओके, ये अलग अलग होता है। तो अभी सेपरेटली सारे मिनरल्स ये करते हैं, व्हाट यू से, एक्सपांड करते हैं, तो उसकी वजह से स्ट्रेसेस आर सेट अप इन द रॉक, ओके। इट मींस सारे सी, अगर ये यूनिफॉर्म होता, सारे मिनरल सेम होते, सब कुछ यूनिफॉर्म होता, तो फिर इसका कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाता, ओके, एक्सपांशन में। लेकिन व्हाट हैपेंस इज कि अगर डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स होते हैं, जैसे ABCDE ऐसे 5 मिनरल्स हैं, हर मिनरल अपने अपने तरह से एक्सपांड करेगा। अगर यूनिफॉर्मली सब कुछ एक्सपांड नहीं हो रहा है तो क्या हो जाता है? रॉक में स्ट्रेसेस सेटअप हो जाते हैं, ओके। एंड ये मॉलिक्यूलर स्ट्रेस जो होता है दैट इज द प्राइम फैक्टर इन डिसइंटीग्रेशन ऑफ द रॉक। वो जो स्ट्रेसेस सेटअप हो जाते हैं ना, तो वो डिफरेंशियल थर्मल एक्सपेंशन की वजह से, डिफरेंशियल थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वो स्ट्रेसेस सेटअप हो जाते हैं। मीनिंग क्या हो जाता है कि हीट,
see, you understand कि different minerals are going to react differently to heat and they are going to expand and contract separate differently. Okay. So now during the day when the rock is heating up and expanding, so the stresses are being set up. During the night when the rock is cooling down and contracting, so the stresses are not being set up, rather the stresses are being taken off. तो इसका मतलब वो rock alternatively स्ट्रेस होता है, डिस्ट्रेस होता है, स्ट्रेस होता है, डिस्ट्रेस होता है, स्ट्रेस होता है, डिस्ट्रेस होता है, एंड वो बार बार स्ट्रेस होके वो स्ट्रेस निकल जाने के चक्कर में वो रॉक जो होता है ना वो टूट जाता है. ओके, द रॉक ब्रेक्स एंड दिस इज हाउ हीट अफेक्ट्स द रॉक. इज दिस अंडरस्टूड पीपल? समझा? आपकी बुक भी ना फनी पढ़ाती है. एनीवेज, इन अ सिमिलर प्रोसेस द रॉक ब्रेक अवे ड्यू टू हीट. नहीं समझा आपको? अच्छा, अरे सी, कोई भी चीज जो होगी ना वो हीट जब लेता है ना तो यूजुअली मिनरल्स जो होते हैं वो एक्सपांड कर जाते हैं. एनी ऑब्जेक्ट, यूजुअली एनीथिंग विद अ ग्रेन स्ट्रक्चर. अच्छा समझा? ओके, यू आर जस्ट सेइंग नहीं समझा ऐसे ही. नो मैम, नहीं समझा मेरे को. नहीं समझा? अच्छा ठीक है, मैं दोबारा से बताती हूँ. हीट जो होती है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट जब हीट एब्जॉर्ब कर लेता है तो एक्सपांड करता है. ओके, मोस्टली स्पेशली मिनरल्स वगैरह जो होते हैं ना, जिस जो मेटल्स वगैरह ऐसी चीजें होती है, तो जैसे ही हीट एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो एक्सपांड कर जाते हैं. ओके, तो रॉक्स का भी वही चक्कर होता है कि डेजर्ट जैसे एनवायरनमेंट में जहाँ दिन में वो बहुत हीट हो जाते हैं, रात में वो कूल हो जाते हैं, तो क्या प्रॉब्लम हो जाती है ना उनकी विद द रॉक्स कि वो दिन में तो हीट एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जब वो हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं तब वो एक्सपांड होते रहते हैं, एंड उनके अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स हैं वो अपनी अपनी तरह से एक्सपांड होते हैं. कुछ मिनरल्स ज्यादा एक्सपांड होंगे, कुछ मिनरल्स थोड़ा कम एक्सपांड होंगे. अभी ये रहा दिन का चक्कर. रात में क्या हो जाता है कि रात में हीट चली जाती है एंड आपके पास सब ठंडा ठंडा हो जाता है, एंड डेजर्ट में तो बहुत ही ठंडा हो जाता है, तो उसकी वजह से द रॉक स्टार्ट टू कॉन्ट्रैक्ट. अब अभी ये दिन में एक्सपांड करो, रात में कॉन्ट्रैक्ट करो, दिन में एक्सपांड करो, रात में कॉन्ट्रैक्ट करो, इस पूरे चक्कर में रॉक में दिन ऐसे ना स्ट्रेस सेटअप हो जाता है. ओके, प्रेशर सेटअप हो जाता है, स्ट्रेस सेटअप हो जाते हैं, क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, एंड वो क्रैक्स की वजह से रॉक बाद में टूट जाता है. दैट इज व्हाट द होल प्रोसेस इज. ठीक है? समझा मैम. ओके, अभी इसी सिमिलर प्रोसेस में रॉक्स ब्रेक अवे ड्यू टू हीट. ओके, दिस इज कॉल्ड एज शैटरिंग. रिमेंबर एक आइस की वजह से शैटरिंग हो रहा था, आइस फ्रीज एंड थॉ शैटरिंग में जो वो आइस शैटर्ड पीस मिल रहे थे हमको, वैसे ना हॉट डेजर्ट्स में भी एक शैटरिंग होता है. उसका एक फैंटास्टिक इफेक्ट होता है कि ना ऐसे पिस्टल फायर करे ना वैसी वाली आवाज आती है, प्रॉपर आवाज आती है, फट करके आवाज आती है, एंड यू थिंक अरे पता नहीं क्या हो गया. तो इट इज जस्ट बिकॉज द रॉक हैज ब्रोकन फाइनली. ओके, वो जो स्ट्रेस होता है वो रिलीज हो जाता है ना व्हेन द रॉक ब्रेक्स. वो जो स्ट्रेस हुआ था उस रॉक में वो रिलीज हो जाता है, एंड उसकी वो आवाज होती है that you feel like it is the firing of a pistol. Okay, so this breaking of rock is very intense and hence such a sound is produced. ये इस तरह का रॉक होता है. मैं इंग्लिश का लेक्चर क्यों कंटिन्यू करूंगी? नहीं नहीं नहीं, आज नहीं करेंगे, और जीनत मैम होंगे ना. ओके, तो हाँ, जैसे पुराने मूवीज में हम वो डिशूम डिशूम जैसी आवाज निकलते थे ना, वैसे ही ऐसे पिस्टल जैसी आवाज निकलती है. ओके, दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग. डिशूम. हाँ, डिशूम जैसी आवाज नहीं निकालते थे क्या? इफ यू हियर ओल्ड मूवीज ना, यू कैन एक्चुअली हियर द साउंड्स, डिशूम डिशूम ऐसे. हाँ, तो गन की नहीं, पिस्टल की. छोटा सा पिस्टल होता है ना अपना 0.35 वगैरह वाला, वैसा वाला पिस्टल होगा कोई छोटा सा. तो ओके, अभी रॉक्स में जैसे ग्रेनाइट होता है. अभी वंस अगेन ना वी विल गो टू डिफरेंट काइंड ऑफ रॉक. नाउ वी आर टॉकिंग ऑफ ग्रेनाइट्स की खासियत क्या है? उसमें जॉइंट्स होते हैं, एंड वो जो हीट होती है ना उसकी वजह से वो जो जॉइंट्स होते हैं वो इजीली ब्रेक हो सकते हैं इन ब्लॉक्स. ओके, वो इजीली ऐसे ब्लॉक्स के फॉर्म में ब्रेक हो जाते हैं, क्योंकि ग्रेनाइट जो है वो इस तरह का रॉक है. दिस इज ग्रेनाइट फॉर यू, एंड वो इस तरह के जॉइंट्स वाला रॉक है. तो जब ये जो जॉइंट होगा ये वाइडन होगा पहले, एंड ये वाइडन हो के फाइनली टूट ही जाएगा यहाँ पर. तो ये वाला सेक्शन सेपरेट, ये वाला सेक्शन, ये बीच वाला सेक्शन सेपरेट, और ये लास्ट वाला सेक्शन सेपरेट, ऐसे. तो ये प्रॉपर वाला ये हो जाता है, व्हाट यू से, डिसइंटीग्रेशन हो जाता है. तो ये अगर ब्लॉक्स के अलोंग टूट गया वो रॉक, ओके, इफ द रॉक ब्रेक्स अलोंग द ब्लॉक्स, देन दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन. ठीक है? नाउ ये कहाँ इफेक्टिव होता है? ये वाला जो डिसइंटीग्रेशन होगा वो कहाँ पे होता है? वंस अगेन जहाँ पर डायगोनल रेंज हाई होता है. ओके, डायगोनल रेंज हाई कहाँ होता है आपका? वंस अगेन डेजर्ट जैसे